Hi, Megha this side. If you're also preparing for CUET UG, then this video is exactly for you. No matter when you are going to give this exam, but if you are going to give this exam, then this video is exactly where you need to be. Right now you can be confused that आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. For domain I am very clear and you need to be very clear as well. So for domain you just need to read NCERT book, NCERT of class 12th, nothing more. You just need to study the 12th NCERT. And today we will talk about the book Political Science of class 12th. As I am a student of political science, so I will tell you what's the syllabus of political science book in CUET UG as well. If your domain is political science, then in this video you're going to get the syllabus of political science, and after that I'll upload proper long video for that, like chapter by chapter as well. Let's start. So we have in politics two book. First is world politics, second is Indian politics. There are different name for that. Like for world politics, it's contemporary world politics. If you are Hindi medium student, don't worry, my video is going to be for both Hindi and English medium. So it's contemporary world politics, and Indian politics book's name is Politics in Independent India. Of course, if we'll read about Indian politics, then we'll definitely gonna read about independent politics after independence of India. So let's start. Today I will talk about the both books, the chapter in each books, and after that we'll just move to and the video with a confirmation that how I'll complete the chapter. Let's start. So first let's talk about that this book contains 7 chapters. This all is going to be related from world politics, and this book contains 8 chapters, and this all is just about Indian politics. And after that in this we'll talk about world like SAARC, ASEAN, EU, USSR, everything is going to be included in this, even UNO, everything is going to be included in this. And in this chapter, 8 chapter, we'll just discuss about the politics of independent India. So let's start. So this is our first class 12 CUET UG 2027 political science syllabus. Let's start. In world politics we have 7 chapters. Let's do it with a red pen for better highlighting. So first is End of Bipolarity, first chapter. In this you are going to study about USSR, about studying जब आप USSR के बारे में पढ़ोगे, आप पढ़ोगे शॉक थेरेपी के बारे में, एंड वहाँ से इमर्ज आप सारे देशों 15 देशों के बारे में भी पढ़ोगे. तो 2 ध्रुवीयता का अंत में हम USSR का डिसइंटीग्रेशन पढ़ेंगे एंड उनके कॉजेज, रीजन सारे पढ़ेंगे. देन कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के समकालीन केंद्र. इसमें हम कुछ पावरफुल सेंटर्स जानेंगे जो इमर्ज हुए हैं हमारे अभी के वर्ल्ड में, जिसमें से हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में, हम पढ़ेंगे EU, आसियान, जापान, एंड हम कोरिया के बारे में भी पढ़ेंगे. इन कोरिया विल स्टडी बोथ नॉर्थ एंड साउथ. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा सार्क पे. एंड सार्क के देश, सार्क में अभी तत्काल 8 कंट्रीज़ हैं, तो उस 8 देशों का आपस में कैसा रिलेशन है हम उस पर ध्यान देंगे. देन हमारा अगला चैप्टर होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा UNO पर, एंड UN के अलावा उसके जो सब ऑर्गन्स हैं हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. देन सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में. एंड छठा चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम कॉमन रिसोर्सेज या फिर वर्ल्ड के जो कॉमन रिसोर्सेज हैं, साझी संपत्ति जिसको कहते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे. 7वां है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, जिसमें हम मेनली LPG पॉलिसी पे ध्यान देंगे, एंड हम लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी ध्यान में रखेंगे, एंड इस सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे. उसके बाद हमारा अगला बुक आएगा इंडियन पॉलिटिक्स. इंडियन पॉलिटिक्स में हमारे कुल 8 चैप्टर्स हैं एज यू नो. सो फर्स्ट इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ. इसमें हम हमारे देश में जब भी आज़ादी हमारे देश को मिली थी उस टाइम के क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या हमारा वातावरण था, कैसे में हम आज़ाद हुए, एंड फिर हमारे पास क्या क्या चुनौतियाँ थी उस वक्त, उस सब को डिस्कस करेंगे. तो इसमें हम विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस वाइल getting independence.
तो और दूसरा चैप्टर हो जाएगा द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आईएनसी के बारे में। हम आईएनसी के डोमिनेंस को पढ़ेंगे एंड इसमें हम 2 वॉर को भी डिस्कस करेंगे, द वॉर विथ पाकिस्तान एंड द वॉर विथ चाइना, बोथ लाइक 1965 वॉर विथ पाकिस्तान एंड 1962 वॉर विथ चाइना। देन तीसरा हमारा आएगा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसमें हम 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे। 5 ईयर प्लान कहाँ से अडॉप्ट किया, कैसे कैसे चला, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम डिटेल में जानेंगे। अगला चैप्टर होगा फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत के विदेश संबंध, इसमें हम इंडिया के विदेश संबंध के बारे में जानेंगे। इसमें हम इंडिया के संबंध बहुत सारे देशों से जानेंगे। अभी नया में हम इसराइल के बारे में जानेंगे, चाइना के बारे में जानेंगे, यूएसए के बारे में जानेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ के फॉरेन रिलेशन हम जानेंगे, फॉरेन पॉलिसी जानेंगे इंडिया के उसके प्रति। देन हमारा 5वां हो जाएगा कांग्रेस सिस्टम, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन। तो 1967 में जब भी बहुत कम सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके बाद कैसे कांग्रेस रिस्टोर करती है, इसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देती हैं एंड वो फिर से कांग्रेस रिस्टोर हो जाता है। देन अगला चैप्टर आता है क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब इसमें हम पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी लगाई गई, क्या बैकग्राउंड था उसका, क्या क्या हुआ, इमरजेंसी के टाइम पर क्या हुआ, कैसे प्रोटेस्ट किए गए, न्यूज़पेपर्स ने कैसे प्रोटेस्ट किया। देन हमारा अगला चैप्टर आ जाएगा रीजनल एस्पिरेशन। अभी रीजनल एस्पिरेशन अभी भी आप हमारे देश में देख सकते हो कि कुछ स्टेट कहते हैं दैट दे वांट टू बी अ सेपरेट कंट्री। सो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, फिर नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। देन चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसमें हमारा मेन फोकस होगा जो भी केसेस हैं, साहबानो केसेस, गोलकनाथ मामला। देन इसमें हम हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी जानेंगे, बीजेपी का इमरजेंस भी जानेंगे, लाइक हाउ बीजेपी एमर्ज। ये सब हमारा इस चैप्टर का पार्ट होगा। अब आफ्टर दैट हमारा पॉलिटिकल साइंस का का डोमेन का पूरा सिलेबस CUET का कवर हो जाएगा। फिर CUET पॉलिटिकल साइंस का डोमेन का सिलेबस ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe if you wanna watch the videos, detailed lecture of all these chapters. I'm actually making the videos on all the lectures, all the chapters, explaining that very well. Thank you very much.